Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with this chapter 2, History, Nationalism in India, and two topics that we have completed. One topic had talked about the Satyagraha movement that was started by Mahatma Gandhi. This is the phase, this is the chapter that deals with the movements that were launched by Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi had very successfully, because India में the independence that we have got, we cannot ignore the efforts and the contribution of Mahatma Gandhi in that. So this is what I just wanted to make it very clear that this chapter is based on the time when Mahatma Gandhi had come back from South Africa. South Africa में वो क्या कर रहे थे? In South Africa, he was practicing practicing lawship. He was a lawyer there. And वहां से बड़े जलील हुए वो. I have already discussed about the incident. He came here and he said now he started this movement against the Britishers, where he wanted to prove to the Britishers that British atrocities are not to be carried on further. अब Britishers का अत्याचार actually नहीं चलेगा. And everybody got this message very clearly कि Gandhi ji is in a very different mood. The movements that were being launched by Mahatma Gandhi are some of the landmarks in India. कभी किसी ने इस तरह के मूवमेंट के बारे में सुना नहीं था. Nobody had ever heard of such movement. Non-violence, सत्याग्रह, लोग मार पे मार खाए चले जा रहे हैं. And that is what has happened. Non-cooperation, when it had started, many places it was totally successful. People were following the principles of non-violence. लेकिन it is very difficult to carry on the non-violent methods. So some places there was violence, जैसा कि हमने डिस्कस किया about चौरी चौरा. The incident that had happened at चौरी चौरा, बहुत ही it was a very sorry state, and Mahatma Gandhi had to call off the movement. इस movement को महात्मा गांधी को खत्म करना पड़ा. महात्मा गांधी called off, he had taken back this movement, and some of the leaders now said कि we will be not carrying on with the non-cooperation. We would be carrying on our own movement in our own manner. इसमें we had the first name was C.R. Das and Motilal Nehru. C.R. Das and Motilal Nehru have formed the Swaraj Party. Swaraj Party इन्होंने form की थी, and they said they would be participating in the elections. Elections were to happen after the Government of India Act. In the last video we have discussed. Britishers India छोड़ना नहीं चाहते थे ना. The kind of economic benefit that they were getting from India, they did not want to easily leave India. इतना नुकसान कौन सहेगा? Who will tolerate so much of loss? So they have made up their mind that they would be staying in India and they will not let the Indians leave so easily. So Indians have to made up their mind. Indians ने पहले ही अपना मन बना लिया था कि नहीं, अब Britishers के साथ मिलके काम नहीं करना है. We do not have to walk along with the Britishers. So now the movement started and it was going towards the civil disobedience. Towards civil disobedience. The movement is going forward with the disobedience, जिसमें कि
Swaraj Party was formed, and they said that they would be participating in the elections, going and sitting with the Britishers in the parliament and टॉकिंग टू देम इन देयर लैंग्वेज. उनकी लैंग्वेज क्या थी? वो बहुत अपने आप को, दे यूज टू कंसिडर देमसेल्व्स टू बी वेरी very sophisticated, fine people with great policies. So now this was the time when Swaraj Party was formed. They contested the elections, they win the elections also, and lot of welfare activities were being carried on by the Swaraj Party. अब क्या हुआ? इतने में this was the time when there was economic depression. ये फेज था जहां पे कि इंडियन फार्मर्स एंड इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम टोटली कोलैप्स्ड. This was the right time when the Indians thought of starting a movement. So Britishers को भी समझ में आ रहा था that the Indians are seething with anger. Indians बहुत नाराज हैं. ये ब्रिटिशर्स को अच्छे से समझ में आ रहा था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स टू पे द रेवेन्यू, एंड ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए थे, गवर्नमेंट वॉज फॉर्म, टॉरी गवर्नमेंट हैज कम टू पावर, एंड उन्होंने एक कमीशन बनाया अंडर सर जॉन साइमन. इंडियंस स्टार्टेड अपोजिंग इट. यस, हाँ, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. यहीं पे हमने स्टॉप किया था. इंडियंस अपोज क्यों कर रहे थे? They were coming to India. They are trying to understand the Indian situation, but there was no Indian member in that. उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. अरे आप इंडिया आ रहे हैं, इंडिया के सिचुएशंस को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं है, तो कैसे होगा? How? Why will the Indians accept it? इंडिया की सिचुएशंस इंडियन से ज्यादा कौन समझ सकता है? Who can better understand the deplorable condition of the Indians? But the Indians only. Okay? So the problem was that Commission did not had any single Indian member, and they were all British. Now what happened? Simon Commission comes to India. आगे की कहानी हम कर रहे हैं. Simon Commission comes to India, and it was opposed everywhere. Yes, this was a very common sight at that time. जहां भी वो जा रहे थे, गो बैक साइमन, दिस वे द इंडियंस वेयर टोटली अपोजिंग द साइमन कमीशन. किसी भी तरह से साइमन कमीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इंडियंस तैयार नहीं थे. इंडियंस वेयर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट साइमन कमीशन इन एनी फॉर्म. तो अब क्या हुआ कि पीपल वेयर वेरी ट्रबल्ड. इनको बहुत परेशानी हो रही थी. द ब्रिटिशर्स वेयर इन टू ट्रबल, एंड इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन. It was greeted. ये स्लोगन आपको याद रखना है, देना है. With the slogan, go back, Simon. ओके, ये स्लोगन अब हर जगह, आप सोचो कितनी बेइज्जती की बात है. वो जहां भी जा रहे हैं, एवरीवेयर, the Congress, all parties, Congress, Muslim League participated in the demonstrations. यहाँ पे Muslim and Hindus together थे. Parties demonstrated against Simon Commission. कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी. बाय दिस टाइम व्हाट हैड हैपेंड इज कि मुस्लिम लीग अपने आप को बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे. मुस्लिम लीग हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन अ वेरी फ्यूरियस मैनर, एंड मुस्लिम लीग, प्लीज अंडरस्टैंड, अभी तक तो फ्रेंडली ही थे.
डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्टीज डेमोन्स्ट्रेटेड, हर एक पार्टी डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी। तो क्या हुआ दैट द वाइसरॉय हु वाज देयर, वाइसरॉय वाज द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड बाय द क्वीन। ब्रिटेन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता था इंडिया में, हु वुड बी अंडरस्टैंडिंग ऑल द पॉलिटिकल सिचुएशंस एंड टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंगली। उसी हिसाब से उन्होंने कहा कि अब मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। So in an effort to win them, the Viceroy Lord Irwin announced, in an effort to win Indians, Viceroy Lord Irwin announced the vague offer of, उन्होंने ऑफर किया, क्या ऑफर किया? Dominion status. Please understand, dominion status. Now what was this dominion status? इंडिया छोड़ के नहीं जाना है ना, छोड़ के जाने के लिए वो तैयार नहीं है, तो इंडियंस को किसी ना किसी तरह से मनाना है। जल्दी जल्दी में मनाने के चक्कर में डोमिनियन स्टेटस उन्होंने अनाउंस कर दिया। इट वॉज एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्कस दिस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was organized to discuss future constitution. Oh, I'm so sorry, I did not explain the dominion status. Okay, dominion status was that status where the Britishers have proposed a federal system. ये प्रपोजल पहली बार ब्रिटिशर्स की तरफ से आया था, जहां पे कि वो प्रपोज कर रहे थे कि इंडियंस आप प्लीज एक्सेप्ट कर लो फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम यू अंडरस्टैंड, अ 2-tier गवर्नमेंट, गॉट ए 2-tier गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो दे सेड, उस समय तो स्टेट नहीं था, एट दैट टाइम देयर वर नो स्टेट्स, एट दैट टाइम देयर वर प्रोविंसेस। सो इट वाज लाइक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। वेरी स्मार्ट पीपल ना, कितने चालाक थे। जब देखा कि इंडियंस जो है कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दे हैव गिवन द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस को उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, जो मतलब स्टेट्स हैं, स्टेट्स आप देख लीजिए, आप संभाल लीजिए, सेंटर हम संभाल लेते हैं। क्यों भाई? वाई? सेंटर मतलब अभी भी दे आर कीपिंग देमसेल्व्स एट द टॉप। सो इंडिया सेड, व्हाई डोंट यू लुक आफ्टर द स्टेट एंड वी लुक आफ्टर द सेंटर? वो कैसे एग्री करेंगे? दे आर ऑलवेज हैविंग अ फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया, उन्होंने कहा भैया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, हम स्टेट आपको दे देते हैं, सेंटर हम रख लेंगे, हम जाएंगे नहीं इंडिया से। तो कांग्रेस डिड नॉट एग्री। Congress did not agree to this system. कांग्रेस ने कहा कि सॉरी, कोई चांस नहीं है, हम बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, आप प्लीज अपना सरकार लेके वापस जाइए, गो बैक। रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर के ही जो लोग थे ना, इट वॉज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। दे बिकेम मोर असर्टिव, उनको ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा था। द लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस were very assertive.
assertive means इस तरह के किसी भी चीज के लिए वो तैयार नहीं थे. They said कि अब ब्रिटिशर्स को हम इंडिया में टॉलरेट नहीं करेंगे. We are not tolerating the Britishers in India anymore. Big blow to the Britishers. बड़ा झटका लगा उनको. Liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence. अब जो लोग कुछ लोग जो थे वही सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू पीपल हु वांटेड टू सिट विद द ब्रिटिशर्स एंड उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करना चाह रहे थे, उनकी प्रपोजल को अब लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे. People were actually not ready to listen to the liberals and moderates. Liberals and moderates were those people जो कि शांति से हल निकालना चाहते थे. They wanted to find out a solution in a very peaceful manner. So please understand that the liberals and moderates were losing their hold in Congress. लिबरल्स ने कहा नहीं, अभी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया है, जाएंगे, ब्रिटिशर्स को समझाएंगे. देन जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस टाइप ऑफ लीडर्स सेड समझाएंगे. डू यू थिंक ये समझने वाले लोग हैं? कैन यू रियली से दैट दीज पीपल विल बी अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग? डोमिनियन स्टेटस दे आर गिविंग अस द प्रोविंसेस एंड दे आर कीपिंग द सेंटर विद देम. सो नाउ व्हाट हैपेंड? मॉडरेट्स चुप हो गए. दे वर क्वाइट. The people, C.R. Das and Motilal Nehru type of people who were trying to find out a peaceful solution, उनका मुंह बंद हो गया. ठीक है, that is what is mentioned there in your book, that the liberals and the moderates who were proposing a constitutional system, कि हाँ ठीक है, let's follow the let's make a constitution, let the Britishers be there. We will be looking after the provinces. हम अपने लोगों का भला करेंगे, हम ब्रिटिशर्स के हिसाब से काम नहीं करेंगे. बोलने की बात अलग थी. ब्रिटिश डोमिनियन में उनको काम नहीं करना था. They lost their influence and as a result what happened? अब a new Congress session was to be happening. साइमन कमीशन फेल हो गया. साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा. लेकिन साइमन कमीशन वापस जाते जाते we had lost one of the very popular leaders from Punjab, that was Lala Lajpat Rai. I just wanted to discuss it, children, because it is one of the very important factors that Lala Lajpat Rai had lost his life. Okay, हाँ, वो अमृतसर में जैसे ही I'll tell you the story. अमृतसर में as soon as the Simon Commission landed, उतर ही रहे थे तो अमृतसर में all these Congress leaders who were there, they were opposing. Go back Simon, go back Simon. पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया. तो ये बुजुर्ग नेता थे हमारे, अगर एल्डरली लीडर, उनके सर पे लाठी लगी. ओके, इन दिस लाठी चार्ज एंड ही वाज इंजर्ड देन एंड देयर. वहीं पे वो बेहोश हो गए. उसके बाद 7 दिन तक बेहोशी रहे, फिर वो ही पास्ट अवे. तो दिस वाज अ वेरी सॉरी स्टेट. अब डोमिनियन स्टेटस के बाद से इंडियंस का गुस्सा बढ़ रहा था. एज अ रिजल्ट इन दिसंबर 1920 में क्या हुआ? The Congress session was held in Lahore. I'm sorry children, it's 1929. Congress session was held in Lahore. लाहौर में ये कांग्रेस सेशन हुआ under the leadership of who was the president at that time? Jawaharlal Nehru. Okay? Congress leaders आए, यहाँ पे बैठ के they started talking and now लाहौर कांग्रेस में क्या हुआ? The demand of पूर्ण स्वराज was decided.
demand of complete independence ठीक है, और हिंदी में जिसको हम कहते हैं पूर्ण स्वराज। ओके, पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया वाज फाइनलाइज्ड। उन्होंने कहा हो गया, अभी बहुत हो गया, ब्रिटिशर्स का मनमानी अब नहीं चलेगा। इंडिया के लिए इन्होंने अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया एंड विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस इनको नहीं चाहिए एंड दे सेड कि दे आर गोइंग टू लॉन्च अ वाइड स्केल मूवमेंट एंड उसकी शुरुआत कहां से करनी थी? सो 26 जनवरी 1930 was decided for celebration of इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे। अब तुम कहोगे मैम ये क्या बता रही हैं आप? यस, इट वॉज नॉट फॉर द इंडियंस। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं इसको समझना। ये इंडियंस के लिए ये इंडिपेंडेंस डे नहीं था, ये ब्रिटिशर्स के लिए था। दिस इंडिपेंडेंस डे वॉज मेंट फॉर द ब्रिटिशर्स कि ये जो तुम हो, you are ruling our country but we have declared ourselves independent। 1930 29 दिसंबर 1929 में हुआ ये। उसके बाद 1 महीने का समय चाहिए था ना सारी तैयारी के लिए। सब लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, एवरीबडी शुड नो अबाउट दिस, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि हाँ इंडिपेंडेंस डे मनाना है, एक बिग मूवमेंट लॉन्च होने वाला है एंड फॉर दैट दिस इज अ प्री कंडीशन टू दिस। So people were to take a pledge to struggle for complete independence. People were to take a pledge for complete independence. ठीक है, लेकिन सेलिब्रेशंस तो अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, बहुत कम लोगों को, क्योंकि क्या हुआ हर एक लोगों तक ये मैसेज पहुंच नहीं पाया। दिस सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। दिस सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड लिटिल अटेंशन। The Congress members were trying कि जन जन तक ये बात पहुंचे। Everybody and anybody, everybody should know about this big thing that they are launching. So Mahatma Gandhi had to find, and Mahatma Gandhi ने कहा कि ठीक है, we have celebrated the Independence Day, that is good, लेकिन everybody is not involved. Gandhi ji was every time talking about the mass struggle. He was against the limited participation of the people. कि कम लोगों को लेके चलेंगे तो इंडिपेंडेंस उतना नहीं हमको मिलेगा। ब्रिटिशर्स को समझाने के लिए, ब्रिटिशर्स को बताने के लिए, these movements need to have been in a big manner. बहुत बड़ा होना चाहिए। It should be big and wide. इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ। इंडिपेंडेंस डे का इन्होंने प्लेज लिया। ये प्लेज क्या था? कसम खाई। ठीक है, प्लेज इज टेकिंग एन ओथ टू मेक द कंट्री फ्री। व्हाट वाज दिस प्लेज? दिस आई विल बी शोइंग इट टू यू इन द बुक इटसेल्फ। कम लेट्स सी इट चिल्ड्रन। So students, today we have read about the Purna Swaraj. Yes, very important incident that had happened today, नहीं sorry yesterday in the last video that we had done. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही थी। No, today only we have done. I am so sorry.
द इंडिपेंडेंस डे प्लेज, ठीक है, प्लेज लेना था ना लोगों को. नाउ पीपल हैव टू डिसाइड कि ब्रिटिश के अंडर में काम करना है कि नहीं करना है. एंड दे हैव, इंडियंस हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड टू वर्क अगेंस्ट द ब्रिटिश. वी बिलीव दैट उन्होंने क्या ओथ लिया था. जस्ट सी दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर कि इट इज़ द इनएलिएनेबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल एज ऑफ एन. जैसे बाकी के लोगों का है वैसे ही इंडियंस का भी राइट है टू हैव फ्रीडम एंड टू एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर टॉयल एंड हैव नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. जितनी मेहनत की है उसका फल भुगतने का टाइम आ गया है. एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ कि द पीपल वेयर ऑप्रेस्ड, their rights were taken away, they have a right to alter it or to abolish it. लोगों को पूरा हक है कि या तो वो उसको चेंज करें या फिर उसको पूरी तरह से बदल दें. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडियन पीपल को दे हैव डिप्राइव्ड. किस चीज़ के लिए? फॉर द फ्रीडम. एंड दे हैव बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मासेस. इंडिया हैज़ बीन रूइंड. इंडिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली. द ब्रिटिशर्स हैव डन दैट. एक्चुअली ब्रिटिशर्स हैव बीन वेरी रूडली, I mean, finishing the Indian system and attacking the Indian culture. So this was a very sorry time and a very sorry state for the Indians. तो पूर्ण स्वराज चाहिए था. पूर्ण स्वराज के बाद ये यहाँ पे हमको समझना है थोड़ा सा एक, आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन फॉर टुमारोज वीडियो, कि महात्मा गांधी हैड टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ही हैज़ मेड अप हिज माइंड कि सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करना है. इसके लिए उन्होंने क्या किया, 31 को ही हैज सेंड अ लेटर टू लॉर्ड वाइसरॉय लॉर्ड इरविन कि पहले वो उनका भी मन यही था कि पहले पीसफुली देख ले एक बार ट्राई करके. अगर हो जाता है तो दैट्स वेरी वेल गुड एंड फाइन. नो बडी वॉन्टेड वायलेंस. इवन ब्रिटिशर्स ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट. लेकिन इंडियंस को देख के, इंडियंस की, अभी हम सिंपल लैंग्वेज में इफ आई से, इंडियंस की हरकतों को देख के उनको बड़ा गुस्सा चढ़ गया था. व्हाट अबाउट देम? वो क्या कर रहे थे? उन्होंने भी तो ऐसा ही कुछ किया था इंडियंस को परेशान करने के लिए. गॉट इट? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग इज कि वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को उन्होंने लेटर भेजा with 11 demands. Got it? अब सबसे पहला इसमें क्या था कि Britishers have imposed taxes on salt. So salt have become very expensive. नमक का दाम जिस कंट्री में बढ़ जाता है वो कंट्री कोलैप्स हो जाती है. ये गांधी जी का मानना था. ये बहुत सारे many people believed into this. So they decided to participate with Mahatma Gandhi in this Swaraj movement and civil disobedience movement. कितने लोग थे ये जिन्होंने गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिला के काम करने का मन बनाया था? So it is 78 people. 78 of his trusted volunteers. बहुत ही विश्वास पात्र थे ये गांधी जी के, और गांधी जी ने इन्हीं के साथ कहा कि आगे दांडी मार्च के लिए इन्हीं के साथ जाएंगे. सच एन ऑनर फॉर देम. ठीक है, सच एन ऑनर फॉर देम. ब्रिटिशर्स एंड देयर एट्रॉसिटीज़, इट हैड टू स्टॉप समवेयर. जो अभी नहीं हो रहा था, आने वाले दिनों में ये होने वाला था. गॉट इट? सो टैक्सेस ऑन सॉल्ट के ऊपर में आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन चिल्ड्रन. इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. रेस्ट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू. ठीक से पढ़िए, बोर्ड एग्जामिनेशन है, कहीं से भी कम पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा. ओके, चलो चिल्ड्रन एंड ऑल द बेस्ट टू यू.